ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਗਾਇਨੇਕੋਲੋਜਿਸਟ ਨੋਟ ਇਵਨ ਨਾਟ ਲਿਸਨਿੰਗ ਟੂ ਹਿਮ ਹਾਊ ਕੈਨ ਹੀ ਡਿਲੀਵਰ ਸਪੌਂਟੇਨੀਅਸਲੀ ਦ ਗਾਇਨੇਕੋਲੋਜਿਸਟ ਨੋਜ਼ ਕਿ ਵਰਡ ਚੱਲੇ ਸੀ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਕੰਡਕਟ ਕਰੇਗਾ ਡਿਲੀਵਰੀ ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪੀਡੀਆਟ੍ਰਿਸ਼ੀਅਨ ਖੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰੀ ਟਰਮ ਤੇ ਐਪਗਾਰਡ ਸਟੋਰਿੰਗ ਕਰੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਪਾਏਗਾ ਵੇਟ ਥੋੜੀ ਕਰੇਗਾ ਵੀ 28 ਵੀਕਸ ਬੱਚਾ to the patient's relative. Normally we have an MBBS doctor on duty. Yes. As a doctor, normally we have an MBBS doctor. वो मेरी ड्यूटी पे सी जो मेरी MBBS डॉक्टर ड्यूटी पे सी वो कितने सी चले गए 8:50 तो बाद शाम ਦੇ 4:10 तक करेगा उस तो बाद 4:20 ਤੇ देख रही हो ना बेबी हो गया टाइम नहीं पाया ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਈਟਲ ਸਟੇਬਲ ਬੱਚਾ ਹੋ ਗਿਆ 4:20 ਤੇ ਉਹਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਮਰੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਨਾ ਉਹਦੀਆਂ ਕੰਟਰੈਕਸ਼ਨਸ ਦੇਖੀਆਂ ਗਿਆ ਨਾ ਉਹਦਾ ਫੀਟਲ ਹਾਰਟ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਬੱਚਾ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਾ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਉਹ ਕੰਟਰੈਕਸ਼ਨਸ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਏ ਪ੍ਰੀਟਮ ਬੇਬੀ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਪੀਡੀਆਟ੍ਰਿਸ਼ੀਅਨ ਉੱਥੇ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਮਰੀਜ਼ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਮਰੀਜ਼ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ 8:50 ਤੇ ਆਰਡਰ ਕਰਕੇ 4:10 ਤੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਡਿਲੀਵਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ 12 ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਵਿਦ ਦ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਫੀਟਲ ਲਾਸ ਯੈਸ ਮੈਮ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਫਾਈਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹਾਈ ਰਿਸਕ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਬੱਚਾ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਦੂਜਾ ਬੱਚਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ੀਅਸ ਹੈ ਕਿ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਈ ਹੈ ਜੇ ਦਰਦਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਦਰਦਾਂ ਰੋਕੀਆਂ ਜਾਣ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਟੈਟ ਲਗਾ ਕੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਦਰਦਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਦਵਾਈ ਫਿਰ ਤੇ 9 ਵਜੇ ਤੱਕ ਮਰੀਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਨੋਟਸ ਹੁੰਦੇ ਹੈ No, this is nothing. This is. Ma'am, ever since I came here in April, I said to them, write the notes. Eta ek paase to ask to conduct. And we don't recommend a doctor to be present for the delivery. Shift the patient immediately. I think is to ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ patient shift ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ with the doctor standing there and the pediatrician standing there to immediately receive the baby to resuscitate the baby. ठीक है ना? Which was not done anywhere. This goes, you have to look into this matter, taking some gynecologists into the, I would like a review this thing on you'll see to it कि review panel होवे जिहदे विच gynecologist ਨੂੰ ਲੱਤਾ ਜਾਵੇ ਹੋਰ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਹੈ ਨਾ so that they can I'll send my notes to the concerning authority ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ some policy is there. Then she asked him not to go and get the. We don't give a baby 28 to 30 weeks to the parents. We can't give a baby of 28 to 30 weeks to the parent. नहीं है 28 ਤੋਂ 30 ਦਾ ਬੱਚਾ ਮਾਂ ਨੂੰ ਫੜਾ ਦਾਂਗੇ ਵੀ ਤੂੰ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾ ਦੇ ਆਪੇ ਹੀ ਮਤਲਬ ਫਾਈਲ ਇੱਥੇ ਸੀਗੀ ਇਹ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ About 25. This is just by mistake and overwriting. 24 लिखा गया है 25. This was the what doctor was. ਇੱਥੇ 9 AM ਨੂੰ 9 PM ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ there lots of cuttings ਮੈਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਆਹ ਫਾਈਲ ਚੋਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਫਾਈਲ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸੀਗੀ ਸਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਕੀਤਾ 24 ਤਰੀਕ ਦੀ 25 ਤਰੀਕ ਬਣਾਈ 4 ਤੋਂ 7 ਬਣਾਇਆ ਇਹ 7.05 ਤੋਂ 7.25 ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਗਾਇਨੀ ਵਾਰਡ ਪ੍ਰੀਟਮ ਡਿਲੀਵਰੀ ਪਈ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਆਣਾ ਹੈ ਬੱਚਾ ਰਿਸੀਵ ਕਰਨ ਕਿਉਂਕਿ ਨਹੀਂ 8 weeks to 30 weeks ਦੀ ਡਿਲੀਵਰੀ ਵਿਦ ਦ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਲਾਸ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਪ੍ਰੈਸ਼ੀਅਸ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲਾ ਬੱਚਾ ਮਰ ਚੁੱਕਿਆ ਦੂਜਾ ਬੱਚਾ 30 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮੈਮਬ੍ਰੇਨ ਰਪਚਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੈ ਕੀ ਪੀਡੀਆਟ੍ਰਿਸ਼ੀਅਨ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਰਿਸੀਵ ਕਰ ਸਕਦਾ were you called were you informed when were you informed ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੋਂ ਦੇਖਿਆ patient on Sunday ਨੂੰ ਡਿਲੀਵਰ patient was sent to the ward and I saw the patient
ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ 28 ਤੋਂ 30 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ 2 kg was the weight and neonatal reflexes are normal. That's why I took the child and brought her. 30 ਵੀਕਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਾ ਹੈਂਡਓਵਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਪੈਰੈਂਟਸ ਨੂੰ? No ma'am, it was in the pediatric ward. ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ 25 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੂਈਆਂ ਵੀ ਲਾਤੀਆਂ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਤਾ ਹੈਗਾ। ਮੈਮ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਮੈਮ 25 ਤਰੀਕ ਚੈੱਕ ਕਰਾ ਕੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਰਫ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਰੱਖਣਾ ਪੈਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਨਰਸ ਨੇ ਡਿਊਟੀ ਸੀ ਮੈਮ ਉਹ ਨਰਸ ਨੇ ਆ ਕੇ ਸੂਈਆਂ ਕੱਢੀਆਂ, ਉਹ ਨਰਸ ਨੇ ਆ ਕੇ ਉੱਥੇ ਰੋਲਾ ਵੀ ਪਾਇਆ। ਕਰ ਸਕਦਾ ਮੈਮ ਇੰਨਾ ਤਾਂ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। 12.9 ਜੋ ਵੀ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਬੇਟਾ ਫੋਟੋਥੈਰੇਪੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ 12.9 ਇਹਦਾ ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ 24 ਬਿਲੀਰੂਬਿਨ ਹੈ ਨਾ? 24 ਨੂੰ 9 24 ਦੇ ਨਾਈਟ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਇਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਮਸ਼ੀਨ 'ਚ? ਮੈਮ ਨਹੀਂ ਬਸ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਫੋਟੋਥੈਰੇਪੀ ਸਟਾਰਟਡ 14 ਨੂੰ। 24 ਸੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ 24 ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨੋਟਸ ਕਿੱਥੇ? ਮੇਰੇ ਨੋਟ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਡਰਾਈਵ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਫੋਟੋਥੈਰੇਪੀ 'ਚ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਫਲੈਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। Ma'am, independent witnesses there who will statement. ਨਾਲ ਦੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਾਂਗੇ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰਸ ਨਾਲ Yeah, but that is not. ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਬੱਚਾ ਤੜਫ ਰਿਹਾ, ਨੀਲਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਮੈਮ ਉਹ ਮਤਲਬ ਜਿੱਦਾਂ ਰੋਈ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਫੀਡਨੈਸ ਹੀ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ ਰੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਾਫੀ ਤੇ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਕੇ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ। ਦੁੱਧ ਮਤਲਬ ਉਸ ਦਿਨ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ 25 ਤਰੀਕ ਉਦੋਂ ਕਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਨਾ ਇਹਦਾ ਮੈਮ ਕਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀਗਾ ਅਸੀਂ 12 ਨੰਬਰ ਕਮਰੇ 'ਚ ਡਾਕਟਰ ਸੀਗੇ ਤੇ ਲੇਡੀ ਡਾਕਟਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਚਾ ਸਹੀ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਡਰੋ ਨਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ ਉੱਥੇ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫਸਰ ਜਿਹੜੇ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਸਟੇਬਲ ਹੈ? ਸਟੇਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਬੱਚਾ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਕਿੰਡ ਨੋਟ ਇਹ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਗਦੀਸ਼ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਬਿਕੋਜ਼ ਦ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਇੰਨਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡ ਔਨ ਕਰਤਾ ਕਿ ਐਡ ਔਨ ਵੱਡੇ ਕੋਈ ਸੀਨੀਅਰ ਪੀਡੀਆਟ੍ਰੀਸ਼ੀਅਨਸ ਚਾਹੇ ਬਾਹਰੋਂ ਲਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਸੀਨੀਅਰ ਗਾਇਨੇਕੋਲੋਜਿਸਟ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਹਸਪਤਾਲ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਹੋਣ ਉਹ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਨਗੇ, ਹੈ ਨਾ? ਸੀਗੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਰੀਜ਼ हाँ जी जैसे ही मरीज़ दाखिल होता है अस्पताल में तो उसको डिफ़ाइन किया जाता है कि ये मरीज़ किस तरह का है, इसका बच्चा ये हाई रिस्क केस है कि नहीं। हाई रिस्क केस वो होते हैं जिनमें पहले बच्चे का लॉस हो या पहले ऑपरेशन हुआ हो या ऐसा हम सोचें कि ये बच्चा नॉर्मली नहीं डिलीवर नॉर्मल बच्चे से हटके है जिसका हमें ख़ास ध्यान रखना है, तो उसको हम लेबल कर देते हैं। उसमें ये होता है कि गायनेकोलॉजिस्ट ही आके डिलीवरी करती है और एक पीडियाट्रिशियन जो होता है वो ही आके बच्चा रिसीव करता है क्योंकि उसको ज़रूरत है। इसमें वो आइडेंटिफाई नहीं किया गया। बाकी जो हमारी स्टाफ नर्स होती है, नर्सेज होती हैं, तो उनको हमने आर्ली और बताया हुआ है कि कैसे आपने जो नर्स ड्यूटी पे बैठी है, देखो डॉक्टर 24 घंटे काम करता है, वो 24 घंटे नहीं देख सकता। नर्स ने बताना होता है अपने नोट्स के दौरान और बुलाना होता है डॉक्टर को कि अब ज़रूरत है आप आ जाएं। तो उसके लिए वो घंटा एक्टिव स्टेज में तो आधे घंटे के बाद ब्लड प्रेशर देखती है, नीचे देखती है कोई ब्लीडिंग तो नहीं हो रही, कंट्रैक्शंस तेज तो नहीं हो रही, उसको समझ होती है कि बच्चा होने वाला है। तो उससे पहले वो डॉक्टर को बुला लेती है ऑन ड्यूटी को, और जब वो तैयारी हो रही होती है तो पीडियाट्रिशियन को भी बुलाया जाता है कि ये बच्चा प्रीमेच्योर है, इसकी स्कोरिंग होगी, ये एस्पिरेट करेगा, इसको इमीडिएटली नियोनेटल यूनिट में शिफ्ट होना चाहिए, जो कि यहाँ पे नहीं हुआ। बीच में नोट्स नहीं है। बच्चे को भी जब डिक्लेयर किया गया कि वो 12 उसका सीरम बिलीरुबिन है, उसको फोटोथेरेपी की ज़रूरत है, तो उसके बीच के सारे नोट्स मिसिंग है कि उस 12 घंटे में किसी ने क्या उस बच्चे को नहीं देखा है तो नोट्स क्यों नहीं डाले। तो इसके लिए री इंक्वायरी ऑर्डर की जा रही है क्योंकि मुझे कुछ भी सेटिस्फैक्ट्री काफ़ी चीज़ें नहीं लगी। तो एक टेस्ट का जो आपने सुना कि पैसे लिए गए, और सबसे बुरी बात जो रात के 1:30 बजे मरीज़ को बोला गया अपना डेड बच्चा लेके आप बाहर चले जाएं, इसको ले जाएं बिना 108 को बुलाए, जो कि हमें फ्री दी है पंजाब सरकार ने। देखो ये सारी सहूलतें हमें सरकार ने दी हैं, अगर हम लोगों तक नहीं पहुंचाते तो इसका मतलब कसूर हमारा है। जो इंक्वायरी हुई है, जो आप जो गलतियाँ ढूंढी है, तो ये भी है कि जो इंक्वायरी हुई वो भी पूरी ढंग से नहीं हुई। नहीं, अभी इंक्वायरी की एग्जैक्ट रिपोर्ट नहीं मिली।
अभी इंक्वायरी की रिपोर्ट, फाइनल रिपोर्ट नहीं, वो एक पहली रिपोर्ट थी, उसके बाद एक दूसरी ऑर्डर हुआ है कि दूसरा इंक्वायरी होगी, उसकी रिपोर्ट मेरे तक अभी नहीं पहुंची। अभी उसको मुझे लगेगा कि ये पॉइंट सारे नहीं कवर्ड, तो वो अभी मैंने री इंक्वायरी ऑर्डर कर दी है। एग्जैक्टली, मैंने ਜਦੋਂ ही वो पहली रिपोर्ट मिलूगी मैं ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ विद इन अ वीक मोस्ट प्रॉब्ली कहूँगी कि बहुत जल्दी जांच की जाए। नो, आई विल बी सुपरवाइजिंग दिस, आई कैन बी अ पार्ट ऑफ इंक्वायरी फॉर द होल ऑफ पंजाब। रिपोर्ट सबमिट की है, उसमें ये कहा गया है कि नर्स ने उनसे मिसबिहेव किया है, दूसरे पे ये गलत है, लेकिन इसमें कहीं भी डॉक्टर की या हॉस्पिटल की गलती नहीं दिखाएगी। इसके बारे में आप क्या कहते हैं? इसीलिए मैंने रिव्यू किया है, मुझे कहीं ना कहीं कुछ लगा, इसीलिए मैंने दोबारा इंक्वायरी ऑर्डर की है ना। SCPS में ऑर्डर कर सकती हूँ कि री इंक्वायरी हो और उसमें जहाँ जहाँ गलतियाँ रही हों किसी की तरफ से भी वो आगे लाई जाए। देखो कहीं ना कहीं यहाँ पे गलतियाँ तो मैंने हाईलाइट ऑलरेडी कर दी आपको, पर हमारी तरफ से जो कमी है उसको हम पूरी करेंगे। देखो ऊपर से लेके नीचे तक शुरू होता है। एक डॉक्टर को हम कहें कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस डाल दें, पीडियाट्रिशियन को इतना स्ट्रेस डाल दें कि वो काम ही ना कर पाए। मैं आपको वो ही बता रही थी, अगर हम बाहर प्रैक्टिस पासी पीछे पासी पीछे देख मैम तो इंक्वायरी पे आए हैं, ये बोल के गए हैं कि हम आपका साथ देंगे। हमें ये लग रहा है कैसे नर्स का दोष नहीं निकाल रहा है, उसका दोष सबसे ज़्यादा उसका दोष है। वो छुट्टी पे होके हमारी बच्ची की सुई निकाल दे आके, हमारी बच्ची को मशीन में नहीं रखने का बता रही है कि नहीं रखना था, तो हमारी बच्ची इनकी लापरवाही से मरी गई है। तो ये बोल रहे हैं कि इसमें उसका कोई कसूर नहीं है। हम तो ये कहते हैं सबसे ज़्यादा उसका कसूर है जिसने हमारी बच्ची की सुई उतारी, हमारी बच्ची का ट्रीटमेंट सुबह से लेकर शाम तक नहीं किया। अच्छा, तो री इंक्वायरी करी है मैडम ने, तो क्या मानते हैं कि उसमें सच सामने आ जाएगा? हाँ, उम्मीद तो है, लेकिन सच सामने आ जाएगा, लेकिन ये तो सरकार के ऊपर है। हम तो उसके हाथ जोड़ के बेनती करते हैं हमको अन्याय दें। नर्स के समर्थक उन्होंने अपनी पत्नी के चरित्र पर भी कई इल्ज़ाम लगाए हैं कि पहले शादी हो चुकी है, पहले भी वो फ्रॉड करती रही हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? सर देखो, पहले शादी हुई कि नहीं हुई, ये हमने तो लव मैरिज कराई है, इसमें पिछली हमारी जाति मामले में इसको दखल देने की कोई मतलब है नहीं। तो आप वो पिछले जाति मामले में दखल दे रहे हैं, ये तो हमारी बच्ची का मामला है, हमारी बच्ची की हुई है, तो इसका हमें इंसाफ चाहिए। हमारी पिछली ज़िंदगी में ये तो गलत बात है जो पिछली ज़िंदगी में हमारे दखल दे रहे हैं। अच्छा, वो कह रहे हैं कि पहले फ्रॉड भी करती थी, शादी अलग हुई और फ्रॉड लगना। मैं तो ये कहना चाहता हूँ, पहले उसके घर में जो सास और ससुर थे उसके झगड़े होते होंगे आपस में, मोहल्ले में तो होते रहते हैं झगड़े, तो झगड़े में ऐसा हुआ होगा, लेकिन हमें नहीं इतनी नॉलेज है उसके पिछले मामले में। हमें इस बार का मालूम है कि हमारी बच्ची की डेथ हुई है। वो कहते हैं कि जैसे आप सरकार की जैसे आपको 1 लाख मिला है, वो कहते हैं कहीं ना कहीं ये भी मामले कहीं है कि जान को इल्ज़ाम लगाया है। मैं तो ये पूछना चाहता हूँ, कोई भी बच्चे को अपनी माँ मार सकती है। जे ऐसा बोलते हैं कि वो नर्स भी अपने बच्चे को मार के फिर 1 लाख रुपया ले लो।